Today I am going to discuss about the NCERT exercise of manufacturing industries, geography. Okay, so Shreya has joined. Say yes or no. Has Shreya joined? Okay. Something visible? कुछ दिख रहा है? Yes, sir. Okay. ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, इसमें दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल, isn't it? This chapter says which one of the following industries use limestone as a raw material, right? तो इसमें ऑप्शन है एल्युमिनियम, सीमेंट, शुगर, जूट, है ना। तो लाइमस्टोन किस में यूज होता है? सीमेंट में। यू हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री। ओके, सो हियर नेक्स्ट टॉपिक इज which one of the following agencies markets steel for the public sector plants? ठीक है, कौन सी एजेंसी है जो स्टील की मार्केटिंग करती है? स्टील जो स्टील बनता है इंडिया में, which company markets steel for public sector? Public sector means government sector, isn't it? So here we will have HAIL, SAIL, Tata Steel and MNCC. So you have got SAIL, Steel Authority of India Limited. This is agency, public sector agency, which markets steel for the public sector plants. Clear? Then children, you have got third one. Which one of the following industries uses bauxite as a raw material? ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें बॉक्साइट यूज किया जाता है? मीन्स यू हैव टू टेल द इंडस्ट्रीज नेम इन विच बॉक्साइट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल. ऑप्शन इज एल्युमिनियम, सीमेंट, जूट, स्टील. सो योर आंसर शुड कम एल्युमिनियम. यू हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री, है ना, वही बायो में, ज्योग्राफी में भी है. ठीक है, तो बॉक्साइट जो है इट इज ओर ऑफ एल्युमिनियम. बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त होता है. सो एल्युमिनियम इज योर करेक्ट आंसर, राइट? Then you have got which one of the following, right, industries manufactures telephone, computer, etc. right? इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है which manufacture telephone and computer? Option is steel, electronic, aluminum, information technology. So टेलीफोन, कंप्यूटर, इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पे आपको क्लिक करना है, राइट? सो इन दिस वे इन योर पीरियोडिक टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल कम. अंडरस्टैंड? देन इन योर NCERT book there are some 30 words answers, isn't it? He is telling answer the following briefly in not more than 30 words. ठीक है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम NCERT question comes. That's why I am making discussion about NCERT exercise. What is manufacturing? This is a question. And second one is name any 3 physical factors for the location of the industry. Third one is name any 3 human factors for the location of an industry. And fourth one is what are basic industries? Give an example, right? So you have got the very first question, what is manufacturing? I have already told in previous videos, isn't it? In previous videos I had explained manufacturing is the process, right, in which goods are produced after processing various raw materials. ठीक है, when we process various raw materials, then some goods are produced by processing of that raw material. That process is known as manufacturing. It is a particular process in which goods are produced after processing the raw materials. Understood? So don't write on screen. Ayush, erase it. It's bad habit. You should not write on screen, beta. Okay. In second question he asked the physical factors, isn't it? 3 physical factors for the location of the industry. यही क्वेश्चन पूछा था ना, इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए what should be 3 physical factors that you should know, right?
So first, factor is availability of raw material, and second one is suitable climate. Climate should be suitable, right? And third one is availability of water and power supply. Clear? Water should be available. There should be power supply as well. Clear? And third question was, you have to tell three human factors for the location of an industry. Human factor क्या होंगे? Three human factors means there should be availability of cheap labor. Okay, availability of cheap labor, availability of services such as consultants and financial advice. Clear? There should be availability of consultant who will give you to with whom you have to consult how you will manufacture, what should be strategy to get maximum profit, and then financial advice. He will give you financial advice at what time you have to make investment. Clear? So, and later on is availability of market. Understand? Means market should be available there. Then we will say that they are human factors that is required for the location of industry. Means availability of cheap labor, availability of services such as consultants and financial advice, and availability of market. Clear? And fourth question क्या था आपका? Basic industries. What was basic industries? So basic industries are those which supply their raw materials to industries which manufacture other goods. ठीक है? Means basic means which is base of economy, which provide base to economy. That is iron and steel. It is basic because most of the machines are made up of iron and steel. So it is basic industry. It supplies steel to the automobile industry. Automobile industry depend on this iron and steel industry because automobile parts are made up of iron and steel. Clear? That's why this is regarded as basic industries. Understood? And then fourth was the important raw materials used in the manufacturing of cement. The question was, what was the important raw materials used in the manufacturing of cement? So what were they? Limestone, silica, alumina and gypsum. They are important raw materials. Understood? सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइमस्टोन चाहिए, सिलिका चाहिए, एल्यूमिना चाहिए एंड जिप्सम चाहिए. These four items are required. They are important raw material. Any problem? Now we will come to the next topic, that is write the answers of the following questions in 120 words. They are of 5 marks. Right? How are integrated steel plants different from mini steel plants? Okay? What problems does the industry face? What recent developments have led to rise in the production of capacity? Right? This is the very first question that we will discuss. Yes. So how are integrated steel plants different from mini steel plants? Clear? So you will say that integrated steel plants are large plants which handle everything in one complex. ठीक है? Integrated steel plant एक ही कॉम्प्लेक्स में रहता है, एक ही कॉम्प्लेक्स में सारा वर्क होता है. From putting together raw material to steel making, raw material से लेके steel making तक, rolling and shipping, all activities are done under one complex, one building, right? So it is integrated steel plants. Okay, they are large plants. It requires huge piece of land, big structure. Understand? And there is a blast furnace that is very huge one. That's why it is a larger plant. And it means all activities takes place from putting together raw material. Yes. Basic industry slide. Okay. Just a minute. I am going there. Basic industries are those which supply their raw materials to industries. बेसिक इंडस्ट्रीज ऐसी क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज हैं जो
रॉ मटेरियल सप्लाई करती है दूसरी इंडस्ट्रीज को, मतलब उन्होंने जो मैन्युफैक्चर किया वो दूसरी मतलब जो है के लिए वही रॉ मटेरियल बन गया। मीन्स जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये बेसिक इंडस्ट्री इसलिए है क्योंकि इसी आयरन एंड स्टील से हम लोग जो है ये रॉ मटेरियल बन जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो पार्ट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील। क्लियर? सो iron and steel become basic because automobile industry is based on iron and steel industry. Understood? That's why iron and steel industry considered as basic industry for automobile industry, isn't it? Automobile industry iron and steel industry पे based है, that's why it is known as basic industry. Very simple logic, isn't it? So now problem is clear, children? Say yes or no. Have you got clear problem? Okay. Now I am moving towards next slide. Clear? अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स के लिए, है कि नहीं? तो कह रहा राइट जो अभी हमने कहा था हाउ आर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम मिनी स्टील प्लांट्स, ठीक है? व्हाट प्रॉब्लम्स डज द इंडस्ट्री फेस, व्हाट रिसेंट डेवलपमेंट्स हैव लेड टू अ राइज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो इसके 120 वर्ड्स में लॉन्ग आंसर्स हैं, ठीक है? तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स वी हैड स्टडीड, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स आर लार्ज प्लांट्स, वेरी ह्यूज प्लांट, ठीक है, विच हैंडल एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग। एक बिल्डिंग होती है उसमें कई सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं, और वहाँ जो है रॉ मटेरियल को किसी मतलब रॉ मटेरियल से ले करके जो हमारा फिनिश्ड गुड्स है, जैसे स्टील जब बन जाता है उसकी रोलिंग करना, फिर उसको शेपिंग करना, तब मार्केट में भेजना या किसी अदर इंडस्ट्रीज को सप्लाई करने का काम एक ही कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में होता है। दैट्स वाई इट इज़ इंटीग्रेटेड स्टील इज़ अ लार्ज प्लांट्स। इसको इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इसलिए कहा गया क्योंकि एक लार्ज बिल्डिंग में, एक कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में काम होता है। एंड द प्रॉब्लम्स मिनी स्टील प्लांट्स, सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो हमारी मिनी स्टील प्लांट्स है, ठीक है? मिनी स्टील प्लांट्स में एक प्रॉब्लम क्या है कि वो स्मॉलर होती हैं। दे हैव इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस, इसमें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस बने होते हैं, ठीक है? फर्नेसेस भट्टी होती है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक आर्क यूज होता है। दे यूज मेनली स्टील स्क्रैप, इसमें स्टील के स्क्रैप्स यूज होते हैं, ठीक है, मीन्स स्टील के स्मॉलर पार्ट्स। एंड स्पंज आयरन इनपुट किया जाता है। आपने देखा था इंडिया जो है स्पंज आयरन का लार्जेस्ट सप्लायर है पूरे वर्ल्ड में, है कि नहीं? ये स्पंज आयरन इसमें इनपुट किया जाता है मिनी स्टील प्लांट्स में। एंड दे हैव री रोलर्स, इसमें री रोलर्स होते हैं दैट यूज स्टील इंगॉट्स, इसमें स्टील इंगॉट्स यूज होते हैं, ठीक है, स्टील के ब्लॉक्स होते हैं। दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड एलॉय स्टील, यहाँ से माइल्ड स्टील भी बनता है, एलॉय स्टील भी बनता है, और उसका एक स्पेसिफिकेशन होता है, उसमें लिखा रहता है कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है, कितना परसेंट इम्प्योरिटी है, कितना परसेंट मैग्नीज है, कितना परसेंट आपका और चीज़ें हैं, दैट इज रिटन ऑन दैट। 4:2:1 में हमारे जो है इसके कॉम्पोजिशन होते हैं स्टील के। क्लियर? सो now I am coming to its other parts, that is here problems। इसमें पूछा था ना प्रॉब्लम्स ऑफ स्टील इंडस्ट्री, तो ये आपके प्रॉब्लम्स है कि हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। एक तो कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, और जो कोकिंग कोल जो इसमें यूज होता है एज अ फ्यूल इट इज़ लिमिटेड, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लिमिटेड क्वांटिटी में मिल पा रहा है। एंड लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इसमें जो लेबर काम करते हैं वो प्रोडक्टिविटी बहुत लो देते हैं, सब बिहार से आके भर जाते हैं, है ना, तो उनकी प्रोडक्टिविटी लो रहती है। अभी वही स्किल्ड वर्कर आ जाए, स्किल्ड लेबर हो, ज़्यादा सैलरी मांगते हैं, ऐसा बहुत कम लोग देना चाहते हैं। दैट्स वाई लेबर की प्रोडक्टिविटी हमारी लोअर हो जाती है। फिर इरेगुलर सप्लाई ऑफ पावर, पावर सप्लाई भी इरेगुलर रहती है हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में ज़्यादा बिजली कटती है, तो जो प्लांट में भी अक्सर एक घंटे पे पावर सप्लाई नहीं मिल पाता, इसलिए प्रोडक्शन नहीं हो पाता। फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में बिल्डिंग में लोग कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सोचते हैं किसी तरह काम चले, आखिर लोहा ही तो बनना है, उसमें कौन सा हीरा सोना चांदी बनना है कि नहीं, इसलिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर रह जाता है, ये एक प्रॉब्लम है स्टील इंडस्ट्री के लिए।
इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते मैन्युफैक्चरर्स. ओके, अंडरस्टूड. एंड then you have got some recent developments that have led a rise in the production capacity. हमारे यहाँ कुछ recent developments हुए हैं, ठीक है, जिसने क्या किया है, that have led to rise in the production capacity. जैसे हमारी कंट्री में liberalization, मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है उसने सब्सिडी दे दिया, लिबरल हो गई, उनके ऊपर टैक्स नहीं मांगे जा रहे, जीएसटी कम कर दिया गया, बहुत सारे टैक्सेस रिड्यूस कर दिए गए जिस ताकि ये अपना प्रोडक्शन अच्छा कर सकें. दिस इज नोन एज लिबरलाइजेशन. सेकेंड है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI. क्लियर. तो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म है विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट इंटरप्रीन्योर्स. जो प्राइवेट इंटरप्रीन्योर्स है वो फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट करा लेते हैं और बाहर की कंपनियों से पैसा लगवा लेते हैं, है ना. और उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस बाय द यूज़ ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजी. क्लियर. जो हमारी न्यूअर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस इट नीड्स इम्प्रूवमेंट. क्लियर. इम्प्रूवमेंट हुआ प्रोडक्शन प्रोसेस में क्योंकि हमने नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ की. अंडरस्टूड. सो दिस वाज द वे. ओके. एंड देन ऑन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, या सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या था, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा था, इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन. कौन कौन से क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज किस किस तरह के पॉल्यूशन पे रिस्पॉन्सिबल है ना. ये तो था हमारा सेकेंड क्वेश्चन. आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे ये जो क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, यही क्वेश्चन है ना. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, राइट. तो इसका आंसर आपने क्या देखा कि हमारे पास इस स्लाइड में है. मीन्स इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. यू नो वेरी वेल, यू आर स्टडिंग अबाउट पॉल्यूशन फ्रॉम क्लास 5th. Air, water, land, noise pollution, isn't it? This thing you have to describe here. Air pollution is caused, okay, air pollution is caused by the presence of high proportion of undesirable gases. हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे ऐसे गैसेज आ जाती हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है. दिस इज अनडिजायरेबल बट इट कम्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कम्स फ्रॉम फैक्ट्रीज. ठीक है, जितने भी मिनरल फैक्ट्रीज है, मेटल फैक्ट्रीज है, दे प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एज इम्प्योरिटी एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कम्स, क्लियर, फ्रॉम chimneys. Okay, so this is air pollution. And water pollution is caused by organic and inorganic industrial waste. ठीक है, वाटर पॉल्यूशन जो हम लोग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और डायरेक्ट हम जो है लिक्विड वेस्ट रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं. इट क्रिएट्स वाटर पॉल्यूशन, इजंट इट. देन थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर from factories and thermal plants are drained rivers and ponds before cooling. Okay, this is thermal pollution क्योंकि हम लोग हॉट वाटर उसको ठंडा किए बिना डायरेक्ट रिवर में फ्लो कर देते हैं. तो रिजल्ट क्या होता है, टेम्परेचर विल इंक्रीज एंड एक्वाटिक एनिमल्स का जो आपका ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो एवापोरेट हो जाएगा. ठीक है, इसकी वजह से उनको स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन सफर करेंगे एंड द रिजल्ट विल बी दे विल डाई, इजंट इट. फिर वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स कॉज कैंसर. जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसके जो वेस्ट हैं उससे कैंसर हो जाता है, बर्थ डिफेक्ट्स हो जाता है, बच्चे लूले लंगड़े पैदा होने लगते हैं एंड मिसकैरेजेस. और उस वाटर को अगर क्या कहते हैं उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं प्लांट्स वगैरह में चला जाता है तो मिसकैरेजेस हो जाता है, मतलब जिनके पेट में बच्चे हैं वो गिर जाते हैं. ठीक है, दैट इज मिसकैरेज. एंड देन यू हैव गॉट डंपिंग ऑफ वेस्ट, है ना. हमारा जो डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, राइट, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग, सॉल्ट्स एंड अदर गार्बेज रेंडर सॉइल यूजलेस. हम लोग वेस्ट को डंप कर देते हैं, उसमें ग्लास भी मिला होता है, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग जैसे पॉलीथीन्स, सॉल्ट्स. व्हाट विल हैपन, दे विल मेक योर सॉइल यूजलेस. ठीक है, देयर विल बी नो फर्टिलिटी. देन यू हैव गॉट नॉइस पॉल्यूशन.
right? Noise pollution is caused due to industrial and constructional activities. Okay, factory equipment, generators, electric saw, drills and other machineries, all these are used here. Clear? So it creates, you can say, noise pollution. जनरेटर से आवाज होगा, बिजली का जो सॉ यूज होता है, आरा मशीन जिसको कहते हैं, ठीक है, उससे आवाज आती है। बहुत सारे और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, ड्रिल करते हैं घर घर बहुत तेज आवाज आती है। तो इट क्रिएट्स अ नॉइस pollution. Understand? Then your third question was, we are coming to the question slide. In third question, what was third question? Discuss the steps to be taken to minimize environmental degradation by industry. Isn't it? हमें ऐसे steps को discuss करना है which minimize environmental degradation. हमारे जो environmental degradation है उसको minimum कर देते हैं इंडस्ट्री में। ओके, तो ऐसे कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो, अगर हो तो बहुत कम हो, राइट? दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर? सो वी आर कमिंग टू इट्स सॉल्यूशन, दैट इज द स्टेप्स टू बी टेकन, राइट? द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, है कि नहीं? तो उसमें हम लोग क्या लेंगे? दे आर फर्स्ट वन इज कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। पहले तो भाई वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करो, है ना? मतलब वाटर में जो भी आपको क्या कहते हैं, जो लिक्विड वेस्ट है उसको डालने से पहले उसको ट्रीटमेंट कर लो, पहले उसको सेटल डाउन कर लो इम्पेरिटीज को। फिर जो वाटर आपका बचता है एज अ डिस्टिलेट, यू हैव टू ड्रेन दैट वाटर इन रिवर, मीन्स प्योर वाटर शुड गो इन रिवर। Second one is industrial effluents needs to be treated. जो हमारे इंडस्ट्री से लिक्विड वेस्ट निकलते हैं उसका ट्रीटमेंट करना होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल पे। एंड द यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग शुड बी मिनिमाइज्ड। जो वाटर का यूज है प्रोसेसिंग में, हमको कम वाटर यूज करना चाहिए ताकि ज़्यादा वाटर ना निकले। रीयूज एंड रिसाइकलिंग में ज़्यादातर हम लोगों को वाटर लगाना पड़ता है। सो रेन वाटर कैन बी हार्वेस्टेड टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो वाटर निकलता है उसको हमें क्या करना चाहिए? उसको हार्वेस्ट करना चाहिए, उस वाटर को कलेक्ट करके रखना चाहिए, उसको प्योर करके, उसको डिस्टिलेट करके हमें उसको रखना चाहिए ताकि जो वाटर हार्वेस्टिंग हो सके। जैसे हमारा जो डेक्कन प्लेटो है वहाँ पे बोरिंग इज़ नॉट पॉसिबल, तो वहाँ जितनी फैक्ट्रीज हैं उनको ये जो लिक्विड वेस्ट का वाटर है उसको बचा के रखना चाहिए, सो दैट दीज वाटर्स कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर। एंड ग्राउंड वाटर यूजेस शुड बी रेगुलेटेड बाय लॉ। ग्राउंड वाटर को हम एक नियम से, एक कानून के हिसाब से यूज करें। एंड लास्ट वन इज फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को मिनिमाइज करना पड़ेगा। हवा में जो धुआं छोड़ते हैं, स्मोक ट्रैक्स, स्मोक टैक्स लगाना चाहिए। चिमनी में एक सिस्टम लगा दिया जाता है जिससे वो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट है उसको फिल्टर कर लेता है, ठीक है? और इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी बोलते हैं। ये क्या करता है? दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इट कंट्रोल्स these harmful carbon dioxide and carbon monoxide to go into atmosphere. It precipitate, it filter it. ऐसे फैब्रिक फिल्टर्स आते हैं, स्क्रबर्स आता है जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड और बाकी जो हमारे मिनरल इम्प्योरिटीज़ है वो एयर में ना जा पाए, उसको सेपरेट कर देती है। ऑल्सो स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टीड ऑफ कोल। क्लियर? तो कोल की जगह पे जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए? वी शुड यूज, मीन्स स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस। धुएं को हम कम कर सकते हैं ऑयल और गैस को हम लोग रिड्यूस करके, ठीक है? एंड देन नॉइस पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिटिंग जनरेटर्स, ठीक है? साइलेंसर, जनरेटर में साइलेंसर लगा लेना चाहिए ताकि जो है नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाए। रीडिजाइनिंग मशीनरी टू रिड्यूस नॉइज। जैसे मशीनरी अक्सर उसके नट बोल्ट जब लूज हो जाते हैं तब वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं, तो उसको टाइट कर देना चाहिए, उसको रीडिज़ाइन कर देना चाहिए मशीनरीज को ताकि वो आवाज़ ना करें। एंड यूजिंग ईयर प्लग्स
कानों में ईयर प्लग्स और ईयरफोन्स, ठीक है, यूज करना चाहिए ताकि नॉइज हमारा जो है कानों में ना घुस पाए। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज ब्लडलेस रेवोल्यूशन? ओके, आई विल डिस्कस नेक्स्ट टर्म, दैट इज हिस्ट्री पोर्शन। I will discuss it in next video. Understood, children? And now we are going to discuss one more chapter, right? And that chapter slide, I am just getting that slide. You wait 2 minutes, okay? We are coming to the chapter agriculture once again for its discussion of NCERT exercise, because NCERT questions are generally comes in board exam. Understand? So be careful, don't ignore NCERT. Understand? Here, which one of the following describes a system of agriculture where a single crop is grown on a large area? इसमें दिया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो व्हाट आंसर शुड बी? प्लांटेशन एग्रीकल्चर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यू शुड नो कि सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें सिंगल क्रॉप होता है, तो प्लांटेशन ही हमारा ऐसा एग्रीकल्चर है उसमें एक ही क्रॉप ग्रो होता है। क्लियर? जैसे टी प्लांटेशन है, सिंगल, ओनली टी प्लांट्स आर ग्रोन, there is no mixture of other plants. Second question, which one of the following is rabi crop? है ना, रवि यानी विंटर सीजन, राइस, ग्राम, मिलेट्स, कॉटन, तो ग्राम, चना, ठीक है, रवि क्रॉप्स में आता है। फिर which one of the following is a leguminous crop? लेगुमिनस क्रॉप, पल्सेस, जवार, मिलेट्स, सीसेमम, ठीक है, your answer should be pulses. Understood? Then you have got which one of the following is announced by the government in support of crop? ठीक है, ऑप्शन है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मॉडरेट सपोर्ट प्राइस एंड इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस। योर आंसर शुड बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP. Clear? Now you have got some more question. Answer the following question in 30 words. Right? First question is name one important beverage crop. Beverage crop means जिसको हम मतलब कंज्यूम करते हैं और उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, that is beverage crop. Understand? And specify geographical conditions required for its growth. This is the question. Clear? इसको 30 words में how you will write, it will decide this slide. Okay? Here it is telling that tea is an important beverage crop. Understood? टी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप है एंड दिस बीवरेज क्रॉप ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जहाँ पे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मीन्स हिमालयन बेल्ट, दिस इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हियर इट इज, एंड डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। और इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए? डीप एंड फर्टाइल होनी चाहिए। ओके, हाँ, एंड विच इज़ रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस भी होना चाहिए खूब, ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए, ठीक है, दे आर रिक्वायरमेंट फॉर बीवरेज क्रॉप। फिर नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन्स वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड। एक स्टेपल क्रॉप का नाम आपको बताना है एंड कहाँ प्रोड्यूस होता है। तो यू नो वेरी वेल, राइस इज अ स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया। हर व्यक्ति इसको स्टेपल क्रॉप जिसे हर कोई खाता है। इट ग्रोज इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्लियर? कोस्टल एरिया में बहुत चावल ग्रो होता है, राइस, एंड डेल्टाइक रीजन से भी बहुत राइस ग्रो होता है। यू कैन सी द मैप, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। थर्ड क्वेश्चन इज इनलिस्ट वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। तो वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट क्या थे वो? क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, फायर, आग लग गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो उसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस मिलता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चरल इनपुट्स एंड रिसोर्सेज, सब्सिडी सबको पता है, ठीक है, छूट मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम चल रहा है, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाता है चाहे जितना पैसा ले लें। अ डिक्लाइनिंग एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन, ठीक है, और एरिया लैंड अंडर कल्टिवेशन दैट इज डिक्लाइनिंग एरिया